Hi students, in today's lecture we are going to discuss the decision making process. So as you know, decision making is very important for a business in order to sustain growth for a longer term. If you make a wrong decision, you will be out of the business. If you make a good decision, you will turn fortunes for your business. So let's study what does decision making says in this chapter. So the decision making what we are going to talk is from purely फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. सो अगर मैं कहूँ कि डिसीजन मेकिंग के टूल्स कौन से हैं, व्हाट डज डिसीजन मेकिंग स्टैंड्स फॉर. सो जो डिसीजन मेकिंग के टूल्स हैं इस चैप्टर में हम जो यूज़ करेंगे वो बेसिकली कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं और सीवीपी एनालिसिस है. सो आप जानना चाहेंगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या चीज़ है. कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट, वो जो कि हम अब विस्तार में आगे जानेंगे. और इसके दूसरी तरफ सीवीपी एनालिसिस आप सब ने इंटर में पढ़ा होगा. दैट इज बेसिकली अ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और यू कैन से अ मार्जिनल कॉस्टिंग. Okay students, so let's go to move to another concept. So the cost concepts. So the cost concept here we are mostly talking about the relevant cost and the non-relevant cost. So what does it relevant cost means? So relevant cost here is the cost which is going to be affected if we make a certain decision. Means like suppose if you have a offer in hand to make a new product in place of the older product. So there is a decision to be made. Should we select the old product, a new product, or just carry on with the old product? So these are very important aspect you have to take into consideration. On the other hand, there is a non-relevant cost. Non-relevant costs are the costs which are not affected by the whatever decisions we take because it has been already incurred in the past. The examples are like we have already bought our equipment, so it doesn't matter we produce new product or the old product because the equipment is going to be the same. Like depreciation is a sunk cost, so it doesn't matter, it's the cost has already been spended. So guys, the one of the most important thing for a cost to be classified as a relevant cost, there are two conditions. So if I say two conditions, so basically the conditions are: first, in relevant cost, there are two conditions to be satisfied. First is it occurs in future. Means like देखो, हमेशा हम फ्यूचर की बात करेंगे इन कॉस्टिंग में. अगर पास्ट में हो गया तो वो संक कॉस्ट है, दैट इज नॉन रेलिवेंट. फ्यूचर में कौन सी कॉस्ट, जैसे आपने प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको नया लेबर लेना पड़ेगा, लेबर अरेंज करना पड़ेगा, नया मटेरियल चाहिए होगा, आपको नए ओवरहेड एक्सपेंडिचर लाइक आपको वर्कर्स की सैलरी देनी पड़ेगी जो कि काम करेंगे. सो दिस सॉर्ट ऑफ कॉस्ट आर बेसिकली दे आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी. ऑलराइट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट डिफर अमंग द ऑल्टरनेटिव. अगर आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव ए और बी, मीन्स लाइक टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट or produce old product. It is not going to change. It's going to change in both the cases. Like if I make the variable cost will be different in this situation A, it will be different in B. So this has to be a prima facie. What is prima facie is basically that will be always be the case. So let's go to the another part. So I want to give you an example. Like suppose the company is considering a proposal to replace a old plant with a new plant. So in this case, company has to discard the existing project. Company को existing project discard करना पड़ेगा. And company के पास क्या होगा, basically उस plant से related उसकी residual book value होगी. And it doesn't matter company की they just discard it or they just sold it. So this is sunk cost, this is a non relevant cost. But इस केस में मान लीजिए कि अगर उसको बेच के हमें कुछ पैसा रिलाइज होता है, कुछ अमाउंट रिलाइज होता है, that will be a relevant cost. Alright, because we are going to get something.
Alright students, so now we are going to move to another category here, that is what is a different type of cost. So पहली cost होती है वो होती है opportunity cost. ये सबसे कॉमन कॉस्ट है जो कि आपको क्वेश्चंस आएंगे. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कहते हैं ना कि फॉर ऑलवेज फॉर अ गेन देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, और यू हैव टू गिव अवे वन थिंग फॉर अनदर. सो इसी तरह अपॉर्चुनिटी, अगर आपने एक डिसीजन लेना है तो दूसरा डिसीजन लेना मतलब आपको बेसिकली दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में सिलेक्ट करना है. दो चीज़ों के बीच में से आपको एक चीज़ मिलेगी. अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी कैफेटेरिया में बैठे हैं, तो आपके पास दो चाय है, तो आप एक चाय पीना चाहोगे या दूसरी चाय पीना चाहोगे, ये आपके ऊपर है. एक चाय में मीठा ज़्यादा है, एक चाय में मीठा कम है, तो यू हैव टू सिलेक्ट. सो बोथ द प्रोडक्ट्स हैव अ डिफरेंट characteristics, different qualities, different functions. So accordingly you have to make the best choice which is good for your health. अब जैसे कि अब इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए, so opportunity cost is basically the cost benefit foregone. Foregone जो कि आपने सेक्रीफाइस किया for selecting another course of action. ठीक है मेरे दोस्तों. सो अब मूव करते हैं हम दूसरे चैप्टर दूसरी कॉस्ट में, दैट इज कॉल्ड अ नोशनल कॉस्ट. एक चीज मैं आपको कहना भूल गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल ऑलवेज बी रेलिवेंट कॉस्ट, ऑलवेज रेलिवेंट. और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि आपको लेबर की शॉर्टेज है, तो आप क्या करते हैं कि या आपको स्पेस की शॉर्टेज है, तो आप क्या करते हैं कि आपके पास एक खाली एक घर पड़ा हुआ है या आपके पास एक प्लांट पड़ा है, उसके पूरा आपको ऑफर आया है या तो आप इस प्लांट में कोई नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर लो या फिर आप क्या करो कि इसको रेंट कर दो. तो आप अगर मान लो प्रोडक्शन करते हो तो रेंट का क्या होगा कॉस्ट, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. बिकॉज अगर आप प्रोडक्शन करते तो जो रेंटल का पैसा आने वाला था वो आपका चला जाएगा. ठीक है, तो लेट्स टॉक विद नोशनल कॉस्ट. सो नोशनल कॉस्ट क्या होती है? नोशनल का मीनिंग क्या है? नोशनल का मीनिंग है इट्स बेसिकली एक इंटरनल चीज है जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं हुई है. लाइक जैसे हमारे पास कुछ फंड्स हैं और उन फंड्स को हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको बैंक में जमा कर दें कैश को, या हम अपने कुछ प्रोजेक्ट में कुछ मतलब फॉर आवर ऑपरेटिंग पर्पस यूज कर लें. तो अगर मैं कहूं कि प्रोजेक्ट ए में मैं पैसा लगाऊं या फिर बैंक में लगाऊं या फिर मैं बैंक में लगाऊं, तो बैंक से मुझे 5% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रोजेक्ट ए से मुझे जो उसका बेसिकली जो प्रॉफिट जनरेट होगा, जो प्रोजेक्ट से बेसिकली मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा. तो अगर मैं कहूं कि अगर मैं इसमें पैसे लगाने का सोचता हूं प्रोजेक्ट ए में, तो ये 5% इंटरेस्ट विल बी लॉस करूंगा, वो मेरी अपॉर्चुनिटी नोशनल कॉस्ट होगी. बट अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इट इज डजंट मैटर, तो वो तो मेरा इररेलेवेंट नॉन रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स.